Hello, hi friends, welcome to my channel. I am Heal with Nora, and today this reading is for pick a card for what surprise is coming your way in next 1 week. Okay, so we have three piles. We have the first pile is stargazer. Okay, so you can see the blue background and this person holding a binoculars in his hand. Okay, and he is looking towards the star. Okay, manifesting something. Okay, so if this resonate with you, this is going to be your pile 1 and we will do the reading also. Okay, my pile 2 is traveler. So this lady who is dressed in pink is looking ahead in a direction, looking for new horizons, new things. Okay, new directions वहाँ देख रही है ये. तो अगर आप इसके साथ में resonate करें, if you're resonating with her, so you pick pile 2. And my pile 3 is magic guardian. Magic guardian is somebody who is dressed in this red and black, okay, and with slight touch of green also. Okay, and she is saying to look within. Okay, so if you are resonating with this beautiful card, then your pile is 3. I will do detailed reading in the other side of this video. Stay tuned and see you. हेलो हाय फ्रेंड्स. सो पहला कार्ड था हमारा, फर्स्ट कार्ड वॉज स्टार गेजर. तो देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या सरप्राइज़ आपके वे में आने वाला है नेक्स्ट 1 वीक में गाइस. नेक्स्ट 1 वीक क्या एक्साइटिंग आपके लिए होने वाला है, क्या आपकी तरफ आने वाला है. स्टार गेजर जिन लोगों ने सेलेक्ट किया था उनके लिए ये रीडिंग है. सो फर्स्ट कार्ड, ठीक है, आपके विशेस, आपकी चीज़ें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपकी तरफ, जिसके बारे में आप सोच रहे थे, जो आपकी बहुत हद तक विशेस को फुलफ़िल करने वाला है. एस ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं कि ये डिवाइन सपोर्टेड आपके लिए एक सपोर्ट होगा. दिस इज़ गोइंग टू बी अ डिवाइन सपोर्टेड सपोर्ट फॉर यू, अपॉर्चुनिटी फॉर यू that is going to come. Okay, and I have also have 6 of swords. 6 of swords बताता है कि you are going to move away from the chaos because this new opportunity is going to give you lot of clarity and you will be in position to move away from the chaos, from the uncertainty, जो चीज़ें अभी तक भी आप handle कर रहे थे. So this, your dreams, your wishes, your manifestations are going to work out this week, and this opportunity is going to be a big support from the universe for you. और देखते हैं, and the high priestess. okay, but यहाँ पे यूनिवर्स ये भी बोल रहा है, while your manifestations, your things are coming in form of a surprise, you have to stay silent, you have to internalize it. आपको internalize करना है, silent रहना है, अभी किसी को भी ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, because high priestess का कार्ड आया है जो बोलता है secrets, अभी अपने अंदर वो information को छुपा के रखिए. सो गाइज, वेरी पॉजिटिव रीडिंग. नेक्स्ट 1 वीक में कोई एक बड़ा सरप्राइज इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी इज़ अबाउट टू कम टूवर्ड्स यू. ठीक है, और ये आपको बहुत हद तक आपके टर्बुलेंट टाइम से दूर लेके चला जाएगा, बट अभी किसी को बताना नहीं है. यू डोंट हैव टू मेक नॉइज़ अबाउट इट. अभी टाइम लगेगा लोगों को समझने में, उन्हें समझने दो. अभी इस अपॉर्चुनिटी को इंटरनलाइज करना है. ऑन दैट नोट, लेट अस सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स. आपके लिए क्या गाइडेंस रहने वाला है यूनिवर्स से. तो गाइडेंस गाइडेंस देख लेते हैं गाइस. तो गाइडेंस क्या रहने वाला है आपके लिए. अवेकनिंग, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एक काइंड ऑफ अवेकनिंग होने वाली है. ठीक है, अवेकनिंग कैसी होने वाली है गाइस. अवेकनिंग ऐसी होने वाली है कि आपको रियलाइज़ होगा कि जो चीज़ सिचुएशंस अभी तक हो रही थी, आप यू आर केपेबल ऑफ मच मोर बेटर थिंग्स. इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अब रियलाइजेशन हो जाएगा. यू विल कम टू द रियलाइजेशन दैट यू डिज़र्व समथिंग बेटर.
ठीक है, यू डू नॉट हैव टू स्टे स्टक इन वन प्लेस, यू हैव टू गो एंड एक्सप्लोर, you are not meant to be staying stuck in the kind of a trauma, kind of the bad situations you were facing so far. ठीक है, so this will help you realize, this week will help you realize कि you are meant to be, and the universe is saying that yes, you are going through this awakening and you have to take this learning and you have to look out for new things in your life, because that is what the stargazer talks about also. ओके और देख लेते हैं डिवाइन से क्या मैसेज है, स्पेसिफिक मैसेज क्या है गाइस आपके लिए. व्हाट इज़ अ स्पेसिफिक मैसेज? joint evolution, you and others are growing together, supporting each other. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके और भी सर्कल में लोग हैं जिनको आप मोटिवेट करें, आप बताएं कि आप तक ये अपॉर्चुनिटी जो नहीं आई है ये कैसे आई है. ठीक है, तो यूनिवर्स कह रहा है कि जब ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो आसपास के लोगों को इमीडिएटली नहीं बताएं, बट आगे चलकर यू टेल देम, यू बिकम अ काइंड ऑफ अ रोल मॉडल कि भाई देखो मैंने ये अप्रोच फॉलो की थी. लेटर ऑन, लाइक वंस यू आर सेटल्ड विद द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड आया था जो बता रहा था इमीडिएटली नहीं बताना है, शोर नहीं मचाना है. बट जब आप उस पाथ पे चल पड़े हैं, आप उस जर्नी पे चल पड़े हैं, तब बताइएगा ज़रूर लोगों को कि आपकी लर्निंग कैसी रही, आपने क्या किया कि ये अपॉर्चुनिटी आप तक आ पाई गाइस. थैंक यू. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो. लोगों ने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया था, मतलब ट्रैवलर का कार्ड. देखते हैं उनके लिए क्या सरप्राइज़ आने वाला है. व्हाट सरप्राइज इज़ गोइंग टू कम टूवर्ड्स देयर वे इन नेक्स्ट 1 वीक. देख लेते हैं कि उनकी तरफ क्या सरप्राइज़ आने वाला है जो लोगों ने न्यू डायरेक्शंस का कार्ड सेलेक्ट किया था. ठीक है, यू विल बी कमिंग आउट ऑफ द स्ट्रेसफुल सिचुएशन. बहुत से लोगों को ऑफ लेट, स्पेशली इन द मंथ ऑफ मे, दे वर फीलिंग लाइक, मतलब ऐसा कि उनकी नींदें ही उड़ गई थी. बिग टाइम कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसा हुआ था जिसकी वजह से दे वर एक्सट्रीमली अपसेट. सो यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस लेवल ऑफ स्ट्रेस. ओके, सेकेंड थिंग इज़, देखो ये ट्रैवलर का कार्ड है. ठीक है, तो आप इस स्ट्रेस से बाहर निकल जाएंगे. ठीक है, ये एक इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है, लाइक यू नो मे बी द रिलेशनशिप्स वर नॉट वर्किंग, क्योंकि यहाँ पे कप्स का कार्ड आया है. मे बी द रिलेशनशिप वॉज नॉट वर्किंग एंड यू फाइनली वॉन्ट टू फाइंड अ न्यू डायरेक्शन, न्यू थिंग्स इन योर लाइफ. ओके, और क्या सरप्राइज़ आने वाला है? एक ऐसा कम्युनिकेशन आपके लिए जो स्पेशल सरप्राइज़ आने वाला है, वो आने वाला है इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो आपको ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डिटैच होने में हेल्प करेगा. आई थिंक यू वर इन सम लेवल ऑफ इमोशनल स्ट्रेस डियर. ठीक है, जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है, आप लोगों के मन में, माइंड में रिलेशनशिप्स को लेके कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल स्ट्रेस चल रहा था. तो आपको इन चीज़ों से मूव ऑन होने का मौका मिलेगा, अपने आप को डिटैच होने का मौका मिलेगा. और ये मौका ऐसा लगता है कि कोई एक फ्रेंड, वन नियर फ्रेंड, न्यू कनेक्शन इज़ गोइंग टू गिव यू दिस अपॉर्चुनिटी. ठीक है, okay guys, so it looks like that you will get a new opportunity, new surprise in the form of a new friend, a new connection. Okay, and which will help you come out of your anxiety. Okay, now let us see what is the guidance from the universe for this week for you guys. So what is the guidance from the universe? Love. दिस कार्ड टॉक्स अबाउट सेल्फ लव. ठीक है, यहाँ पर ये जो न्यू कनेक्शन बनेगा और जिस तरीके से भी आप इस सिचुएशन से डिटैच होंगे गाइज, इट विल टीच यू समवेयर टू लव योर सेल्फ. ठीक है, अभी तक वो सिचुएशन जो आपको बहुत एंग्जाइटी दे रही थी, उससे आप निकल पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस न्यू कम्युनिकेशन, न्यू फ्रेंड. और यहाँ पे आपको मौका मिलेगा टू लव योर सेल्फ, टू फोकस ऑन योर सेल्फ. Okay, and light, and you will feel very light. So the divine is saying that in the coming 1 week you will feel you will feel very light energies. You will not be feeling heavy, and when you are loving yourself, you are unbothered, the divine is saying that you feel light, you observe the light, the things around the universe around you. Okay, and this will give you lot of peace. On that note, let us see what is the message from the universe for you.
सो गाइज आपके लिए जो मैसेज है, पिकअप अनदर कार्ड. So it is supportive circle. When you are coming out of it, and of course you have a new friend also, okay, you look out for a circle, a group of friends. एक नया सपोर्ट सिस्टम बनाइए, उस डायरेक्शन में यू गो, समथिंग विच विल हेल्प यू कम आउट ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन. यू मूव इन टू दैट डायरेक्शन. उस ग्रुप की, उस सपोर्ट सिस्टम की हेल्प पे यू विल एनकाउंटर पीपल हु विल ट्रूली केयर एंड सपोर्ट यू. ठीक है, ये जो लोग होंगे, जो सरप्राइज़ आपकी तरफ आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ द सपोर्ट सिस्टम, जो जिसकी वजह जो एक नया सपोर्ट सिस्टम है, एक नया फ्रेंड सर्कल हो सकता है, नए लोग हो सकते हैं. ठीक है, कुछ ऐसे फ्रेंड जिनसे हम कनेक्टेड तो थे बट उस लेवल पे कनेक्ट नहीं हुए थे, वो लोग हो सकते हैं जो आपको इस सारी सिचुएशन से निकलने में बहुत हेल्प करेंगे. Okay guys, so this is going to be phenomenal for you. This is going to be great for you next 1 week guys. So on that note, don't forget to like this video and subscribe to my channel. Okay guys, अब मैं जाऊँगी पाइल 3 की. जिन लोगों ने भी पाइल 3 सेलेक्ट किया था विच इज़ मैजिक गार्डियन, उनके लिए ये वाला पाइल का रीडिंग हम कर रहे हैं गाइज. सो लेट अस सी क्या सरप्राइज़ आपकी तरफ आने वाला है नेक्स्ट 1 वीक में गाइज. तो लेट अस सी. नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, इंटरेस्टिंग, एंड कम्युनिकेशन एंड एस ऑफ वॉन्ड्स. आई थिंक गाइज, जो कनेक्शन, जो पर्सन, आप जो पैशन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे, इट इज़ फाइनली कमिंग योर वे. अ न्यू कनेक्शन, अ पैशनेट वन, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन इज़ गोइंग टू कम योर वे. दिस इज़ गोइंग टू बी कम ऑल ऑफ अ सडन. ये ऑल ऑफ अ सडन ही आपकी तरफ आने वाला है. ठीक है, इतनी एनर्जी होगी इस कनेक्शन में, इस कम्युनिकेशंस में, दैट मतलब आपको यू विल फील अलाइव, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर. आप अलाइव फील करेंगे गाइज. यू विल फील अ न्यू काइंड ऑफ अ एनर्जी. सो आई थिंक हो सकता है ये पर्सन बहुत लॉन्ग टर्म आपकी लाइफ में ना रुके, बट ये पर्सन जो आपको फीलिंग दे के जाएगा, दिस पर्सन, वॉट दिस पर्सन, द काइंड ऑफ द लेवल ऑफ फीलिंग दिस पर्सन इज़ गोइंग टू गिव यू इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्युटली डिफरेंट जो अभी तक आपने ऑब्जर्व किया था. सो इस वीक का सरप्राइज़ है एक न्यू कनेक्शन जिसके साथ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन यू विल फील अ लॉट ऑफ केमिस्ट्री, लॉट ऑफ स्पार्क गाइज. सो इंटरेस्टिंग रीडिंग. ऑन दैट नोट लेट अस सी कि यूनिवर्स आपको क्या बोल रहा है. What does universe is trying to say to you in this situation? क्या करना है आपको guys? Let us see यूनिवर्स आपको क्या बोल रहा है. ओके, सो यूनिवर्स बोल रहा है कि ये जो कनेक्शन होगा आपके लिए, ये पूरी तरह आपकी जो फाउंडेशन से उन्हें हिला के रख देगा और एक नया डायमेंशन देगा सोचने के लिए. और लेट अस सी फर्दर गाइस कि और क्या यूनिवर्स हमें बोल रहा है. कम्युनिकेशन देखो यहाँ पे भी आया है. देखो यहाँ पर क्या है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन. एंड देखिए यहाँ पर इफ़ यू कैन सी देयर इज़ अ गर्ल टॉकिंग टू अ टाइगर. यू हैव टू बी वेरी वेरी काम. आपको बहुत काम होना है एंड जस्ट गो विद द फ्लो करिए. यहाँ पर बहुत ज़्यादा आगे की प्लानिंग नहीं करनी है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ परमानेंट एनर्जी फॉर यू, दिस इज़ अ टेम्परेरी एनर्जी फॉर यू. बट इसे इंजॉय करिए, कम्युनिकेट करिए, बट विद इन बाउंड्रीज. ओके, अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर का प्लान करने लगे, फ्यूचर के बारे में सोचने लगे, वो नहीं. इंजॉय द मोमेंट, इंजॉय द बिट्स, इंजॉय द मोमेंट. दैट इज़ वॉट द यूनिवर्स इज सेइंग. एंड ऑल्सो लेट अस सी द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स कि मैसेज में क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं. डाउट सरफेस. ठीक है, someone's trust you is starting to waver. Okay, so here what will happen is शायद इनिशियली आप ना इस पर्सन पे ट्रस्ट ना कर पाए. आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, बिकॉज यूनिवर्स ये बोल रहा है कि ये जो मोमेंट है, ये जो सरप्राइज़ है, ये जो कनेक्शन है, इसको इन्जॉय करना है. इसके साथ में लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करनी है आपको. ठीक है, इन्जॉय करिए, बातचीत करिए, अच्छी फ्रेंडशिप्स बनाइए, बट
पूरी तरह ट्रस्ट, इसीलिए ये कार्ड आया था कम्युनिकेशन का, कि पूरी तरह ये मत सोच ले कि येस दिस इज़ माय फ्यूचर, दिस इज़ टू अर्ली फॉर दैट। ठीक है, पहले ट्रस्ट बिल्ड हो जाने दीजिए, वो डाउट जो आपके मन में है वो क्लियर हो जाने दीजिए, तब आगे के बारे में सोचिएगा। ओके, सो enjoy this moment guys, and this is a beautiful reading. Please do like this video and subscribe to my channel. Take care, I will see you later, bye bye.